So first thing, what we will decide what would be the syllabus. Okay. 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 And here also we'll track how much we are, how much percentage of this part we have completed it. Okay. So the first Okay. aid, what we'll do, we'll be doing just general overview, that is SAP overview. Okay. And with this also you'll be having like SAP QM overview. I mean, what all we are having in quality management. So this Okay. would be your first category. And after that, we'll be having a session on master data. Okay. So SAP Okay. QM, we are having like sampling procedure. Okay. Mostly, I mean, it would be sampling procedure, sampling scheme, then master inspection characteristics, basically it is called. Okay. Then we'll be learning the master inspection method. Okay. Then also we are going to learn the inspection plan. Okay, so these are the basic masters which will be at least needed when you will be going ahead with the quality management process. Okay. Then as a process perspective, we'll be learning some scenario, basically transaction. So when we are working with any organization, we'll have to work with, for an example, at what part the quality is being occurred. So for an example, when you are receiving something from the market, from the supplier, so you'll have to check the quality, you'll have to approve for the quality, right? Since you are in the same department, I'm not sure for which area you are working, but there are type of inspection: inward inspection, in-process inspection, inspection during process, online rejection. Those all are the process, right? So first we're learning the inward inspection. Okay. In inward inspection, we'll see how the quality, we'll see goods receipt, how it will happen. Good receipt from supplier in your premises. Okay. Then you'll have to see the inspection log. I mean, how you are getting the intimation for the quality check. Then you will be doing the result when your analysis or result or sampling, we can say. We'll be doing sampling. Then you will do some analysis and you'll have to put the result recording in system. Then you'll have to take the decision about that lot. Yes. Okay. So okay. These are the scenarios for the invitation. Yeah. Sir, can we start this class in Hindi? Pardon? Yeah, sure. So can we? ये आपके कैसे ना सिनारियोज रहता है आपका बेसिकली आपके प्रोसेस में. आप जब बाहर से परचेस करते हो कोई भी प्रोडक्ट, आप जब आपकी कंपनी में आती है तो उसका क्वालिटी किस तरह से होता है, राइट? जी. तो ये इनवर्ट के टाइम पे हम लोग सीखेंगे. देन पोस्ट प्रोसेस कैसे होता है जब आप प्रोडक्शन कर देते हो, ठीक है, आप प्रोडक्शन आपका होता रहता है तो आप कैसे क्वालिटी करते हो. स्टेप में सेम रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज ऑफ द स्टेप, बट द फैक्ट कि आपको प्रोसेस सेम रहेगा. दिस इज द पोस्ट प्रोसेस. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इन प्रोसेस. जैसे आपका प्रोडक्ट बनता रहता है और वो टाइम पे आपकी क्वालिटी होती रहती है, आपका मशीन चालू है एंड यू आर चेकिंग फॉर द क्वालिटी, ठीक है, तो ये आपका इन प्रोसेस है. Now I'm currently working as a leader. तो ये सब हम लोग 3 मेजर सिनेरियो सीखेंगे. ठीक. पार्डन, आवाज आ रही है मेरी? मुझे हाँ सर, आ रही है आवाज, आ रही है. मुझे आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? हाँ, ये 3 सिनेरियो हम लोग सीखेंगे. ठीक है, ठीक है सर. उसके बाद हम लोग ना कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे. आप कहाँ पे हो? आप गांव में स्टे करते हो, कैसे सिटी में हो, कहाँ पे हो? हाँ सर, गांव में स्टे करता हूँ. अच्छा, नेटवर्क का इशू है.
नहीं नहीं सर, नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, नेटवर्क तो अच्छे आते हैं। अच्छा ठीक है। दिन हम लोग ना कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अभी ये जो ट्रेनिंग है ना ये नॉर्मल यूजर लेवल की है, तो आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन यानी कंसल्टेंट लेवल की ट्रेनिंग हम लोग देंगे। ठीक है, ठीक। तो ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सीखा जाएगा और देन एडवांस टॉपिक। ठीक है। तो एडवांस टॉपिक में हम लोग बेसिकली अलर्ट सीखेंगे, अलर्ट नोटिफिकेशन कैसा होता है, देन नोटिफिकेशन सीखेंगे, एंड कस्टमर कंप्लेन कैसे रजिस्टर करता है सिस्टम में वो सीखेंगे। तो ये सब प्रोसेस है आपके जो कि ठीक हम है। लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें डाउट, कोई ऐसी चीजें जो आपको क्लैरिफाई करनी हो, जो लग रहा है कि आपको नहीं कुछ और होना चाहिए, या आपको ये सब कम समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हाँ सर, ये सब मैंने एक्चुअली होते हैं हमारे साथ में ना, तो ये सब मालूम हूँ? है मुझे। अच्छा। इस करंटली मैं इन प्रोसेस क्वालिटी देखता था, हाँ फिर मैं ओवरऑल क्वालिटी देखनी स्टार्ट होगी कि हाँ इनपुट से पहले भी है ना, इनकमिंग भी और हाँ। फाइनल भी, और प्रोसेस ठीक भी, है। मतलब प्रॉपर फ्लो इंचार्ज बना दिया, और करंटली मैं कस्टमर कंप्लेंट देख रहा हूँ। ओके ओके, समझा मैं। तो ये सब पहले ना हम लोग उजैफ, ये सब सिनारियोज हैं जो अगर हमने ये कवर कर लिया ट्रेनिंग में, तो आपका मोस्टली क्यूएम का सारा चीज हो जाएगा। और क्या होता है ना, कंसल्टेंट जब आदमी बन जाता है आप एसएपी क्यूएम के फील्ड में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगती है। और भी बहुत सारी एडवांस जी। चीजें हैं जो बेसिक लेवल पे आपको अभी नहीं समझ में आएगी, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप इसमें काम करने लगोगे, तो सब चीजें क्लैरिटी होगी। ठीक है, जितना मैं समझा सकता हूँ आपको समझाऊंगा। ठीक है, जितना पार्ट मैं कवर कर सकता हूँ, लेकिन मेजोरिटी में आपका जो रोड मैप रहेगा यही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ठीक है कोई सर, डाउट है क्लियर है। इसमें? नहीं। ठीक है, तो आप जैसा मैंने बोला कि दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ, आई मीन आपका अलग अलग मैंने टॉपिक बना दिया। तो हम्म। ये अराउंड आप देखेंगे ना, तो देयर वुड बी अराउंड, मैं क्लासिफाई भी कर देता हूँ कि कितने टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, अब इतने टॉपिक में सेवन सेवन जनरल टॉपिक में आपका कवर करूंगा। ठीक है, और जैसा मैंने बताया आपको, ठीक। अब और जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा ना, हम लोग यहाँ पे एक वो भी डाल देंगे कि इसका ये स्टेटस हो गया, ये कंप्लीट हो गया, और ये एक्सेल सीट में आपसे हमेशा जब भी सेशन हो जाएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। हम्म। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई टॉपिक वाइज। ठीक है, अब ठीक। हमारा ठीक है। सेशन कैसे चलेगा? ठीक है, अभी सेशन प्लानिंग में बताता हूँ आपको कैसे चलेगा। रोड मैप मतलब ये आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, सिंपली आई से ठीक है। सिलेबस। सेशन मतलब हम्म। आपका शेड्यूल कैसे होगा, किस तरह से हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। हम्म। तो यहाँ तक क्लैरिटी है आपको? ठीक है, इसमें भी आपका ठीक है एक सर। प्लान बना देती हूँ, क्योंकि सिलेबस अलग चीज होती है और ट्रेनिंग का सेशन होना अलग चीज होती है। तो आपको मैं किस तरह से सिखाऊंगा और क्या मेरा स्टाइल रहेगा सिखाने का, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे मेंटेन करता हूँ। टॉपिक, तो सबसे पहला पार्ट जो मैं सिखाऊंगा आपको, जनरल ओवरव्यू सिखाऊंगा, जनरल टॉपिक। ठीक है, जिसमें मैंने ठीक है। बताया जैसे कि आपका ये एसएपी ओवरव्यू और क्यूएम ओवरव्यू हो जाएगा। मोस्टली हम लोग अभी भी ये करेंगे ये पार्ट। ठीक है, फिर हम लोग इस पे आएंगे मास्टर डेटा ठीक है। पे। ठीक है सर। मास्टर डेटा हम लोग सीखेंगे, दूसरा टॉपिक होगा फिर हम लोग इनवर्ट इंस्पेक्शन सीखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है पोस्ट प्रोसेस सीखेंगे। हम्म। फिर जैसा मैंने बताया यहाँ पे आपका इनवर्ट हो गया, पोस्ट प्रोसेस हो गया, फिर इन प्रोसेस सीखेंगे। हम्म।
फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है कॉन्फ़िगरेशन और एडवांस टॉपिक। इतना होने के बाद ना एक आपका असेसमेंट होगा। ठीक है। मतलब आपने क्या सीखा है कि ना, वो असेसमेंट मैंने कितना करूंगा गेन उसका किया। एक सेशन। हाँ, कितना गेन किया वो हाँ, असेसमेंट 1 होगा। ठीक है। और ये ठीक है। असेसमेंट आपका जो है एक सेशन होगा, इसमें मैं चेक करूंगा आपको कितना अभी तक आपने गेन किया है। ठीक है। आ, ठीक है फिर सर। उसके बाद जो है एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, जो आप मेरे साथ मुझे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। मुझे आप ठीक शो है। करेंगे कि ठीक है आप क्या क्या कर सकते हो सिस्टम में। ये होने के बाद जो है जी। हम लोग जो है फिर अगेन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद विल लर्न एडवांस टॉपिक। ठीक है। तो ये बेसिकली ठीक है आपका सीक्वेंस रहेगा। और सीक्वेंस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होगा, बट मोस्टली आपके लिए ये इस तरह से सीक्वेंस रहेगा। अब शेड्यूल जैसा मैंने बताया कि आपका शेड्यूल कुछ इस तरह से रहेगा कि आप कब कब क्लास ले सकते हो, क्या क्या आपका टाइमिंग रहेगा। सर, एक्चुअली मेरी 12 घंटे की जॉब होती है। 12 घंटे की। आ, जी। और मेरी ठीक है। दोनों शिफ्ट में काम होता है, मतलब डे डे भी चलता है, नाइट भी चलता है। ओके। जब मेरी नाइट की शिफ्ट होगी तो 7 बजे से पहले कभी भी ले लूंगा मैं क्लास। ठीक इवनिंग है। 7 बजे से पहले कभी भी। नहीं नहीं, है डिसाइड ना। करना और पड़ेगा जब क्योंकि मेरी क्या है, मैं भी वर्किंग हूँ ना उजैव। तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कब कब क्लास लोगे। इज दिस आपने सर आप आपसे सुबह से क्या बात हुई है, वीकेंड क्लासेस की बात हुई है या वीकडेज की बात हुई है। सर, मेरी शुरू से तो कोई बात नहीं हुई थी। मतलब मेरे बड़े भाई की बात हुई थी, जो मुझे बता रहे थे ना कि SAP में आना है तो तुम्हें, तो उन्होंने ही बताया अच्छा था। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने ये बोला था कि जब डेमो क्लास होगी तभी डिस्कस कर लेंगे क्या क्या रहेगा। हम्म। तो हाँ। ठीक है, लेकिन ये जब भी आपका। आप सर, आपकी हाँ ऑफिस ठीक है। टाइमिंग क्या है? मेरी ऑफिस टाइम 10 to 7 रहती है, 9 to 7 रहती है, बट आप अगर डिसाइड करोगे तो वो टाइम मैं आपको ब्लॉक करके दूंगा। तो ये आप डिसीजन ले लेना, शेड्यूल क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अभी सर अभी 15 दिन की मेरी नाइट रहेगी ना, कल से। अच्छा। हाँ हाँ। तो कल से आप 15 दिन आप का डे में नाइट कभी भी रहेगा। करा दो। हाँ, मेरे नहीं जो नहीं, स्टार्ट होती है डे ना वो में कभी नौ भी बजे नहीं करा सकता। 9 बजे। सी, सैटरडे संडे नॉट एन इश्यू, बट वीकडेज में विल हैव टू मैनेज इट, कितने बजे करना है। ठीक है। तो 7 बजे तक जैसे अच्छा, मैंने डे में बोला नहीं कि करा पाओगे आप? नहीं नहीं, डे में नहीं करा पाऊंगा। हम्म, तो जब ओके। आपकी जब अगर डे शिफ्ट होगी तो नाइट में किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता तो सर नाइट में 11 बजे कराओगे आप? है। नाइट में 8 8 9 बजे तक कर सकते हैं, इस तरह से। 11 11 बजे नहीं, 8 9 बजे तक नहीं होगा। सर, 9 बजे तो मेरा ऑफ ही होता है वहां से। अच्छा। हम्म, हाँ, तो वीकडेज में फिर करो। आप छुट्टी कब रहती है। सिर्फ संडे की छुट्टी होती है सर। फिर संडे को होता है। तो ये थोड़ा सा हम्म, डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, आपका शेड्यूल क्या रहेगा, इस तरह से अपना शेड्यूल चलेगा। और जो मैंने बताया ये प्रॉपर अपने को 9 सेशन मैंने दिया है, बट इट वुड बी अराउंड। आपका 10 सेशन रहेगा, अराउंड 10 to 12 तक जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है, एक दो में कम अगर आप क्लास नहीं कर पाओगे, रिपीट करना पड़ा तो। ठीक है। और सेशन जो है हम्म, करीब करीब 1 1 घंटे का रहेगा मिनिमम। मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 1 घंटे का तो रहेगा। ठीक है। जी। ठीक। क्लियर है। हाँ, सब क्लियर है सर। कब तक कवर हो जाएंगे सारे टॉपिक? देखो, मेरे हिसाब से टाइम लेना अच्छा है। ठीक है, टाइम लगा के सीखोगे तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, ग्रास्पिंग अच्छी होगी। नहीं तो कवर तो मैं 10 दिन में भी कर सकता हूँ। बट आप 10 सेशन अगर हम्म, लगातार करोगे तो खत्म हो जाएगा। वैसा नहीं करना है। टाइम, कोई भी चीज़ अगर टाइम हम्म, इन्वेस्ट करते हो तो समझ में आएगा। ठीक है। दो हम्म, वीक 3 वीक पकड़ के चलो आप। ठीक है, अगर रेगुलर अटेंड करते हो तो 2 3 वीक पकड़ के चलो। ओके। ठीक है।
फिर भी क्यूएम का पोर्शन इतना नहीं रहता है, क्यूएम थोड़ा सा स्मॉल टॉपिक है, स्मॉल टाइप का मॉड्यूल है, छोटा मॉड्यूल है, तो उतना तो नहीं रहता, बट फिर भी आप बाकी सब मॉड्यूल्स को तो इनफैक्ट जो है एक एक महीना लग जाता है, ठीक है। तो ओके। इसमें तो उतना नहीं है, बट एटलीस्ट समझ के चलो 15-15 दिन तो लगेगा ही मिनिमम। सर मैं ये कह रहा था क्योंकि मेरे लिए तो सर ये जो है एसएपी न्यू ही है सब कुछ। हम्म हम्म तो मुझे सर्टिफिकेशन भी चाहिए इसका। हम्म। सर्टिफिकेशन बाद में करोगे ना आप? तो जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ना, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसा आप मुझे सब सिखा दोगे उसके तुरंत बाद ही सर्टिफिकेशन करना है। या कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो मैं एक्चुअली जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ना सर, वो सर्टिफिकेशन के लिए ही कर रहा हूँ ज्वाइन। हम्म। क्योंकि जो मेरे भाई है ना, हाँ जो मेरे भाई है ना वो सर्टिफिकेशन के लिए ही बोल रहे थे कि सर्टिफिकेशन हो जाएगा हम्म। क्लियर तभी जॉब मिल पाएगी अच्छे पैकेज से। वैसा कुछ है नहीं, ठीक है, सर्टिफिकेशन मायने रखता है श्योरली, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बिना सर्टिफिकेशन के भी लोग ज्वाइन होते हैं। आई एम नॉट सर्टिफाइड, लास्ट 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, टाइम टाइम का बात है, लेकिन यस सर आपके भाई एक्सपीरियंस है सही ना। बोलते हैं। नहीं, एक्सपीरियंस मुझे बाद में हम्म। हुआ होगा ना जेफ, पहले तो मैं भी ज्वाइन हुआ हूँ ना। हाँ हाँ। एक्सपीरियंस आज मैं बोल रहा हूँ ना, 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं भी सर अभी फ्रेशर कहाँ था ना, वर्किंग कर तभी रहे हो नहीं था। हाँ, थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंशियल है, कहाँ? अभी आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बाद में बता दूंगा, ठीक है। ओके 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 ओके। अभी नहीं बता सकता, ठीक है, बाद में आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये सिलेबस और सेशन प्लानिंग पे प्रॉपर है, आपको कोई क्लैरिटी या कोई कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन है? नहीं नहीं सर, सब ओके। ठीक है, ठीक है। ना अब हमारा क्लास होगा कैसे, ठीक है, प्रैक्टिस, हम्म प्रैक्टिस क्या रहेगी? तो हम लोग क्या करेंगे हम्म। ना, सबसे पहले स्पेसिमेन डेटा कलेक्ट करेंगे। आपको अब ओके। ये पूरा पूरा क्वालिटी प्रोसेस सिखाना है, आप चूंकि एक इंडस्ट्री में काम भी करते हो, तो हम लोग ना ये सब करने के लिए स्पेसिमेन डेटा कलेक्ट करेंगे कि अगर हम लोग कोई भी कंपनी में, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में क्या इन्वर्ट किया जाता है, किस चीज, कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया जाता है, वो आर्टिकल का हम लोग अच्छा पर। एग्जांपल लेंगे, ओके ठीक है। उसको सिस्टम में क्रिएट करेंगे, सिस्टम में उसको वैलिडेट करेंगे पूरा, ठीक है। और ओके उसको सिस्टम में क्रिएट करने के बाद उसका पैरामीटर आर्टिकल, आप क्या क्या पैरामीटर चेक करते हो, ठीक है, उसका रेंज क्या रहता है पैरामीटर का, ठीक है। ये सब हम लोग पहले ये सब स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट उसके क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग सिस्टम में ये बिल्ड करेंगे। क्लियर है? ओके सर। तो यहाँ पे एक मेटल मास्टर होता है, और एक जो है, हाँ, मेटल मास्टर आपको ब्रीफ करूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है? ठीक है। तो आज जैसा मैंने बताया ना कि आज हम लोग जो है डे 1 है, विल बी जस्ट लिसनिंग कि हमारा प्रोसेस क्या होता है, कहीं भी क्वालिटी प्रोसेस होता है और एसएपी क्या होता है। आप एसएपी के बारे में कितना जानते हो, क्या जानते हो, एसएपी क्या है? सर एसएपी के बारे में सिर्फ मैं इतना जानता हूँ, ये जर्मनी की कंपनी हम्म है ना। और हम्म इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट। हम्म और ये अराउंड 80% कंपनी इसी के उस पर वर्क करते हैं। ये कि ईआरपी हम्म है ना। सिर्फ मैं इतना ही जानता हूँ कि ईआरपी के थ्रू इस पर वर्क होता है, लेकिन हमारी कंपनी में सेप पे वर्क नहीं होता, एसएपी वर्क नहीं होता, हमारे हम्म पे ईआरपी वर्क होती है। और कल। हम्म, हाँ। अच्छा। तो ये इस पे सारा डाटा होता है कि हमारे पास में कितना मटेरियल है ना, कितना रॉ मटेरियल है, कितना हमारे पास में फिनिश मटेरियल है। मतलब एक तरीके से हम्म इन्वेंट्री के तौर पर हम इसको यूज करते हैं।
हम्म, हाँ, अभी तो सिर्फ इतना ही पता है इसके बारे में सर। ओके, अच्छा, ठीक है, बट एक जनरल आइडिया रखो ना, एसएपी एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी कंपनी में अगर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, तो आपको एक ईआरपी बोला जाता है। आप इंजीनियर अगर हो तो ईआरपी एक टर्म जो है आप पहले भी कॉलेज वॉलेज में पढ़े होंगे। ईआरपी का मतलब होता है कि नहीं एक यार, ऐसा सॉफ्टवेयर, मैं बोलूँ? इंटरप्राइज, जी इंटरप्राइज, हाँ सर बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, सो एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग इसका एब्रीविएशन फॉर्म है, ठीक है। बट होता क्या है, ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है यस। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि कंपनी के मैक्सिमम डिपार्टमेंट का काम जो है इसी से हो जाता है। पहले लोग इसको बनाते भी यस। थे। एसएपी एक टाइप का ईआरपी है, हम्म। ठीक है। और भी मार्केट में यस। बहुत ईआरपी है, मार्केट में ओरेकल है, आपने नाम सुना होगा, हम्म। बान है, और लोकल ईआरपी भी है, जैसे जेडी एडवर्ड है, आपने टैली का नाम सुना है, राइट? टैली का नाम सुना है, यस ये यस। सब ईआरपी है। तो उसमें से एक एसएपी भी है। लेकिन ये है कि एसएपी आज के टाइम में टॉप पे है, टॉप पे इतना टॉप पे है कि ओरेकल और बान जो है, अगर 100 कस्टमर में, पूरी दुनिया में 100 कस्टमर में बात करूं तो 80 कस्टमर एसएपी के होंगे, 20 कस्टमर ये सबके होंगे, ठीक है। यस। तो करता क्या है बेसिकली, एसएपी का प्रोसेस क्या रहता है कि ये कोई भी कंपनी के लिए पूरा अकाउंट्स और एसएपी के पार्ट्स क्या 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 देख लेता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट का काम देख लेता है। आप कोई भी आपने कंपनी में काम किया है तो आपको मालूम है कि कंपनी में डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, राइट, परचेज डिपार्टमेंट हम्म। होता है, स्टोर होता है, क्वालिटी होती है। हम्म। आपको अभी कौन सी इंडस्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री का नाम क्या बताया? सर ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या बनाती है? सर फोन मैन्युफैक्चरिंग करती है, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी की। फोन का, अच्छा, आपको ओप्पो बताया आपने, ठीक है। तो क्वालिटी होती है, हम्म। फिर एक क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट होता है और एक जो है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, क्यूए बोलते हैं, ठीक है। यस सर ये यस सर। ये हर जगह नहीं होता दोनों, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस खास करके फूड एंड बेवरेजेस में होता है कि क्वालिटी प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही है। फिर उस जो है ये सारे हम्म। डिपार्टमेंट, हेलो। हेलो। आवाज आ रही है ना मेरी? सर अभी जस्ट आई थी, आपसे पहले जो आपने बोला वो आवाज नहीं आई। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं बोल रहा था कि जो ये किसी भी कंपनी में आप देखोगे ना, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, राइट। जी। यस सर। तो ये बहुत अवेयर है, आप चूंकि काम करते हो तो आपको ये सब मालूम होगा, करेक्ट। अब ये सब यस डिपार्टमेंट के सर। सारे वर्क को जो है पीआरपी से हैंडल करना है, तो एसएपी में सिमिलरली मॉड्यूल से अलग अलग, जैसे एसएपी हम्म। एफआई बोला जाता है, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, सेल्स को एसडी जी। बोला जाता है, मार्केटिंग को भी एसडी से ही हम्म। हैंडल किया जाता है, परचेस को एमएम बोला जाता है, स्टोर को हम्म। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोला जाता है, क्वालिटी चेक को जैसे आप क्यूएम बोलते हो, ये दोनों का क्यूएम होता है, हम्म। प्रोडक्शन का पीपी मॉड्यूल होता है। इसी तरह से कुछ हम्म। कंपनी में प्रोजेक्ट भी हैंडल किए जाते हैं, तो प्रोजेक्ट भी हैंडल करने के लिए जो है मॉड्यूल होता है, लाइक पीएस होता है, प्रोजेक्ट सिस्टम। इसी तरह से हम्म। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है कंपनी के लिए, जी। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो है पीएम होता है। तो जैसे जैसे डिपार्टमेंट रहते हैं, चूंकि मैंने बोला ना कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि हर एक डिपार्टमेंट का काम हैंडल करता है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी रहती है, इंटीग्रेटेड तरीके से करता है। तो ये आपके जो है अलग अलग आपके जी। मॉड्यूल हो गए, इसको मॉड्यूल बोलते हैं। और मॉड्यूल कैसा रहता है कि उस डिपार्टमेंट के हिसाब से ही रहता है, ठीक है। सब में अलग अलग है, जी। जो फिनांस बैकग्राउंड का रहेगा फिनांस सीखेगा, जो सेल्स बैकग्राउंड का सेल्स रहेगा। जैसे आपने, आपका एक्सपीरियंस जो है क्वालिटी में, तो आप क्वालिटी सीख रहे हो, जिसका एक्सपीरियंस प्रोडक्शन में रहेगा वो प्रोडक्शन सीखेगा, ठीक है। जी। जी। तो ये इस तरह से आपका बेसिकली जो है कहीं पे भी प्रोसेस होता है, किसी किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। अब आपका टिपिकल प्रोसेस क्या होता है, यू नो, जस्ट मुझे 1 मिनट दो।
मुझे कंफर्म करना मेरी स्क्रीन अगर दिख रही है तो। यस सर, दिख रही है। तो जैसा मैं बता रहा था कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में ये समझो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी के पूरे काम को हैंडल कर लेता हो, हर एक डिपार्टमेंट के काम को हैंडल करता हो। अब इतना बड़ा अगर सॉफ्टवेयर है तो जी सॉफ्टवेयर का नॉलेज, हाँ, वो सॉफ्टवेयर एक आदमी तो पूरा सीख नहीं सकता है, उसके लिए अलग अलग पर्सन, अलग जी अलग जी मॉड्यूल में उसको डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग जैसे जैसे डिपार्टमेंट होता है वैसे इसका डिवीजन भी होता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ टेक्निकल मॉड्यूल्स होते हैं, ये तो चलो फंक्शनल हो गया। जैसे डेवलपर होता है जिसको हम लोग अवेब बोलते हैं, प्रोग्राम होता है। ठीक है, अगर हमको कुछ डेवलप कराना हो, कुछ कस्टम कराना हो तो हम लोग वेब के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये एक जी। जनरल एक अंडरस्टैंडिंग आप रखो एसएपी के सामने कि एसएपी होता क्या है। ठीक है, और ओके। क्यूएम में क्या होता है, कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में ना क्यूएम का एक प्रोसेस रहता है क्वालिटी का। तो आई डोंट नो अगर आपको मेरा फ्लो डायग्राम प्रॉपर विजिबल है। सर प्रॉपर नहीं है मेरी जो। छोटा रहेगा बहुत, हाँ अभी है। यस यस। तो कहीं पे भी क्वालिटी का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है मालूम? मैं अभी जैसे इनवर्ट बता रहा हूँ, तो मैं परचेज वाला बताता हूँ। तो जब भी आपको प्रोडक्ट जो है ना प्रीमाइसेस यानी गेट पे आ जाता है ना, तो आपको इंटीमेट किया जाता है, आपको बताया जाता है कि कोई ट्रक आई है जिसका क्वालिटी चेक करना है। तो उसमें दो प्रोसेस होता है, आप तो लोड करोगे या बिफोर लोडिंग भी चेक कर सकते हो, अनलोड करोगे या बिफोर अनलोडिंग भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ना स्टोर ओके का पर्सन जो है इंटीमेट करता है कि आपको क्या करना है, ये प्रोसेस है। फिर आप उसका सैम्पलिंग करते हो, ठीक आपने किया भी होगा, आपके आपके फ्लोर पे भी ये सब काम होता है। तो सैम्पलिंग करते हो, सैंपल है। का जो भी मेथड रहता है। फिर आप उसमें ना यस सर। एनालिसिस करते हो, आप उसको एनालाइज करोगे, उसके जितने भी टेस्ट है उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए। क्वालिटी इंजीनियर का यही काम होगा ना कि जो यस उसमें चेक करना है, जो प्रोसेस उसमें चेक करना है उसको कंफर्म करेगा। ठीक है, यस। तो फिर जो भी रिजल्ट आया सिस्टम में उसका रिजल्ट कैप्चर किया जाता है कि हमने टेस्ट किया, 10 पैरामीटर टेस्ट किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट होने के बाद जो है रिजल्ट आ गया, अभी अब उस लॉट को यूज करना है, रिजेक्ट करना है, पासिंग दिया जाता है कि इसको यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यानी यूजेस का डिसीजन देना है। और यूजेस डिसीजन अगर हो जाता है तो क्या किया जाता है कि स्टॉक पोस्टिंग कर दी जाती है और बोल दिया जाता है कि नहीं ये जो ये स्टॉक है इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ओके। और बाद में आप कुछ एक रिपोर्ट बना लेते हो जिसको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस बोलते हैं। किसी भी कोई भी इंडस्ट्री यस। में जैसे आप केमिकल कंपोजिशन रिपोर्ट बनाते हो। ठीक है, वो सारी चीजें कर लेते हो, जी जैसा प्रोडक्ट जैसा मटेरियल उस तरह का उसका पैरामीटर रहेगा टेस्ट करने के लिए, और वैसे ही आप उसको एनालिसिस करो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये यही प्रोसेस कहीं से भी रहे, अगर आप चूंकि प्रोडक्शन में भी कर रहे हो, आपको प्रोडक्शन प्रोडक्शन किसी ने कर लिया है टीम ने, तो पानी देना समझ, ले जाओ पानी। आपने प्रोडक्शन कर लिया है तो प्रोडक्शन का भी प्रोसेस यही रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, प्रोसेस यही करोगे, आपको बिल्कुल। प्रोडक्शन टीम बोलेगी, जैसे परचेज में आपको स्टोर टीम बोलेगी तो प्रोडक्शन में प्रोडक्शन टीम बोलेगी। तो ये प्रोसेस को ही बिल्कुल। हम लोग क्वालिटी में कैसे मेजर करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, ये पूरी चीज जो है सिस्टम में चलती है। ठीक है, यस सर। और अगर एसएपी में मैं ये बताऊं कि प्रोसेस कैसे होता है, तो प्रोसेस जो है स्क्रीन के साथ देखो। पहले इंटीमेशन आया, तो जैसे जीआरएन कोई करेगा, जब ये इतने स्टेप्स हैं, तो जैसे कोई जीआरएन करेगा तो इस तरह से एक स्क्रीन दिखेगी और जहाँ पे दिखेगा कि क्या प्रोडक्ट आया है, उसका कौन सा बैच आया है, कब आया है, कौन से सप्लायर से आया है, सब कुछ दिख जाएगा। उसके बाद जो है एज पर पैरामीटर आप सैम्पलिंग करोगे, और सैम्पलिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट आया है, तो ये रिजल्ट ये पैरामीटर है जो आप टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ठीक है।
ये पैरामीटर अब जो है टेस्ट कर रहे हो, तो ये पैरामीटर का आपका रिजल्ट क्या है, आपने क्या रिजल्ट पाया है। ये 4 पैरामीटर है, तो फॉर एन एग्जांपल आप यस नो इसमें ये अपीयरेंस कैसा है, दिखता कैसा है, टॉप एंड बॉटम का कलर कैसा है, फंक्शनल टेस्ट एलईडी ग्लो कैसा है, टेम्परेचर टेस्ट टेम्परेचर का रिजल्ट, तो ऐसे इसका रिजल्ट डाल दिया जाता है। और एज पर पैरामीटर का जो भी रेंज रहेगा उसके हिसाब से सिस्टम प्रपोज करेगा कि एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है, राइट। फिर उसके बाद जो है जैसा आप रिजल्ट आ गया, आपने एनालिसिस कर लिया, रिजल्ट सिस्टम में डाल लिया, तो अब इन्वेंटरी क्या करनी है, हमें यूज करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें एक पैरामीटर थोड़ा सा नॉट ओके था, देखो यहाँ पे नॉट ओके लिखा मैंने, तो इसका मतलब ये फेल हो रहा है, लेकिन फिर भी यूज करना है, तो कंडीशनली आप इसको यूज कर सकते हो। फिर जो है आपका यहाँ पे ये चूंकि हमने कंडीशनली बोला, तो इसको हम लोग ब्लॉक में रख सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है आपका COA आप सिस्टम में निकाल सकते हो। तो ये मेथड होता है, ये सिस्टम में SAP में किस तरह से प्रोसेस करते हैं, ये आपको एक जो है मेथड आएगा। सर हेलो। हेलो सर, हाँ जी एक बोलो। मिनट सर, ऑफिस से कॉल सर, ऑफिस से कॉल आ रही है, बस एक मिनट सर। ठीक है, ठीक। हेलो। यस यस सुजात। हाँ सॉरी सर, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक आइडिया आ गया ना, देखो ये इस तरह से ही हम लोगों के ट्रेनिंग प्लान होगा, और जी अब जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, दैट विल बी ऑन सिस्टम इटसेल्फ। ओके। ठीक है। ओके सर। आप चूंकि देखिए फर्स्ट सेशन है, अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, आप कुछ समझना चाहते हो, कुछ रिलेटेड टू QM, रिलेटेड टू जॉब, इस तरह से कि अगर कोई भी आपको बात समझनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ सर, रिलेटेड टू जॉब पूछना था। अभी जो आपने समझाया वो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि मैं भी सेम फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। हम्म। हाँ, ERP भी यूज होती है हमारे यहाँ पर, Oracle यूज हम्म, होती है। हाँ, अच्छा तो मुझे ERP भी, हाँ वो भी यूज करनी आती है, लेकिन थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा नहीं आती। अच्छा। हाँ, जो मेरे सर बड़े भाई है ना, हम्म हाँ, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि एक्चुअली मेरी जो ना 12 घंटे की जॉब है, हम्म और सैलरी भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो उन्होंने हम्म। बोला था कि SAP कर ले, और उसके बाद में सर्टिफिकेशन कर लेना, फिर उसके बाद में जहाँ वो वर्क करते हैं वो वहीं पे बोल लेते कि मैं तुम्हें वहीं पे दिखवा दूँ। ओके। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। पहले तो मैं इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहा था। हाँ हम्म। तो इंस्टीट्यूट में उन्होंने मना किया कि इंस्टीट्यूट में ज्वाइन मत करना, क्योंकि वो, हाँ सिर्फ ना थोड़ा बहुत आता, वही वो सिखाते रहते हैं, तुम ऐसी जगह ज्वाइन करना ताकि हम्म वो कहीं और भी काम कर रहे हैं और तुम्हें सिखाएं, तो उन्हें पता होता है कि इंडस्ट्री में इस टाइम क्या चल रहा है। हम्म। तो उन्हें कहीं से नंबर मिला था, तो उन्होंने बात की थी, तो आज की शेड्यूल बुक हुआ था हमारा। अच्छा।
तो सुब्बू से जो बात हुई थी तो सुब्बू ने बोला था कि सर्टिफिकेशन के ये तो एक तो 3 महीने का एक्सेस देंगे। हम्म। हेलो। हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज मैं आ कह रहा रही हूँ है। 3 महीने का एक्सेस देंगे। हाँ, 3 महीने का वाला एक्सेस देंगे जो सर्वर एक्सेस होगा, और बाद में सर्टिफिकेशन के लिए मटेरियल देंगे जो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। हेलो। या हो जाए। हाँ हाँ सर, यही बात हुई थी हमसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आई थिंक सो आज के लिए कंक्लूड करते हैं सेशन। ठीक है, तो आई बिलीव आपके भाई का सजेशन हम्म प्रॉपर है। ठीक है, हम्म एक्सपीरियंस से सीखने का अलग ही होता है, एक अलग अलग वो रहता है। देखो, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, आपको जी अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, तो आपको जैसा मैं हम्म बोला ना, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, आपके कंफर्टेबल जोन से निकल के थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें समझ में भी आएगी। ठीक है। जी जी। हम्म, हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था सर, अगर मैं सर्टिफिकेशन करना चाहता हूँ, हम्म। अगर बाई चांस में सर्टिफिकेशन नहीं हो पाता है तो जॉब मिलेगी मुझे? मिल जाए कोई चांस। सर्टिफिकेशन जो है देखो प्राइमरी रहता है, लोग ऐसा नहीं रहता कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन हर जगह मांगता है। इट इज नॉट नेसेसरी। कर लोगे तो बहुत हम्म अच्छा है। अपॉर्चुनिटी जो है, जहाँ पे आपको 60% चांसेस रहेंगे वहाँ पे 100% हो जाएगा। ठीक है, जी तो सर्टिफिकेशन के भी जी तरीके होते हैं। सर्टिफिकेशन में तो एग्जाम ही होता है, और क्या, बाकी सब पढ़ाई जी, प्रैक्टिस अपने एग्जाम से होता करना रहता है। ठीक है, तो है। आपको जी बस इतना जी। समझना चाहिए, इतना इतना समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा थियरी भी पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स समझने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप उसको प्रॉपर रिप्लाई कर पाओगे। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। और कुछ और उसका कुछ कॉस्ट भी होता है, 36,000 तक का कॉस्ट है, 6 अटेम्प्ट रहता है उसका। 6 बार आप दे सकते नहीं हो, या 6 सर्टिफिकेशन कर सकते हो आप। हाँ सर, जो 1 अटेम्प्ट है उसका 17,000 है, और जो 6 अटेम्प्ट है उसके 43,000। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया है फिर। हम्म 1 अटेम्प्ट में ट्राई करो। प्रेप पीआरपी करके एक साइड भी रहते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर मॉक ड्रिल भी देते हैं पूरा, तो उस पर भी ट्राई करना। हाँ, मॉक ड्रिल कहाँ मिलता है सर? ईआरपी प्रिप करके एक साइट रहती है, प्रिप अच्छा, ईआरपी या ओके। ईआरपी प्रिप करके, उसमें भी कुछ आई बिलीव $90 या $70 पे करना रहता है, तो वो लोग एक्सेस देते हैं और उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो क्वेश्चन तो मुझे सुबह देने के नहीं बोल रहे थे, हाँ सुबह ही देने के नहीं बोल रहे थे क्वेश्चन वगैरह सब। हाँ हाँ, लेकिन ये लेटेस्ट है। देखो, सुब्बू सुब्बू जो है बुक आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इससे ही ज्यादा सब क्वेश्चन मैच करता है। जब अच्छा जो अच्छा, लोग जो मॉक। सर्टिफिकेशन, जो लोग, हाँ, जो मॉक है हम्म इससे ज्यादा मैच करता है, क्वेश्चन सब इसी में से आता है, ये समझ लीजिए। तो आपको वहाँ पे ओके कुछ पेपर्स रहेंगे, उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया आ जाएगा। ओके। हम्म। और सर फी का डिस्कशन नहीं हुआ था। फी का डिस्कशन आपको सब सुबह करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ कोर्स ओके रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन कर सकता हूँ। ओके।